So welcome everyone. Yes, now you can. Yeah. So it's about my daughter only, Mariah. So the thing is that for the past few months, she was not attending her online classes because she was not interested. So I didn't ask her to as she's very small. But now all of a sudden, because we were attending this online class, so she was like, Mama, even I want to attend my class. So I got her joined again with her school. And then her principal called me and she's like, if you want, we can like promote Mariah to LKG. Like she did her preschooling over there and not like pre-nursery, just playgroup. So she just called me because she's seen her growth and everything. So I was just praying maybe it should happen because it will save her 1 year if she gets promoted. Okay. So it was like very downward kind of a situation because it was happening and today I got a call that we can't do this. And just after 5 minutes, they called me up again. They're like, okay, we are promoting her. Wow. She's in And today she got promoted. I just got a mail. which school? Ma'am, Footprints. Oh, very nice. Very, very. Congratulations. Thank you. All your constant prayers, Thank you, ma'am. और आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं that Yeah, they are saying congratulations for you. Hi. Hi, Mariah. Come here. Come here. Do you want to say hi? No, just say Say hi, please. Please, hi. Me say hi. So I'm painting. Hi, Mom. Hi, sweetie pie. Hi. Hi. Show them your painting. Show them your painting. Hi. Show them your Oh my colors. God. Wow, show them this. Come on. Yeah. Wow, wonderful. Very nice. Very nice. Yeah, ma'am. Okay, ji. Say thank you, Mariah. Okay, you can do your painting. Okay. Thank you, Shneet. Thank you so much. I'm so happy for you and her, Thank you. Great. Ma'am, wait. My name is Ishneet and my sister, she's Gurneet. So that was Gurneet's daughter. Yeah. That is Guni's daughter. कोई बोले तुम एक जैसे लगते हो मुझे नहीं पता. Ma'am, हाँ हम same. Ma'am, almost twins. सब बोलते हैं that we are twins. But I still wanted Icha to come and attend, Yeah, ma'am, I've told her about it, and in fact, she is seeing my growth. So I told her that I really want you to attend these sessions. And please share the details with Icha also because I Ma'am, want. I have done that. I have done that. Also, one of my cousins, she really wanted to, but the thing was, we didn't really told her. We told her quite late. I asked her that she can join sessions, but at the same time, she could see, see YouTube videos, and she can do the assignments. So because both my There's a cousins, major both the difference siblings really between wanted. attending lively and listening. Yes, ma'am. I did told her that. She was like, "Okay, chalo, abhi to I'm late. Later I will do that for sure." In fact, Kartika was also coming. I don't know whether today she's there or not. Kartika was coming and I don't know. Hello, Okay. ma'am. Good evening, Sujata. Congratulations. Thank you. All your inspiration. सुजाता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम. I'm so happy to see this. Thank you so much. बहुत दिन से पीछे पड़ गई थी. मैंने कहा चलो अब मान ही लेती सुजाता की बात. बहुत हो गया अब. Thank you. I'm sorry, everybody. I've kept waiting, but thank you so much. Congratulations, ma'am. Very congratulations to you. Thank you. Now, lots of abundance is coming now. Yes. All abundance is coming from you to me. Wow. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for such wonderful participants of my group, Thank you so much. मोनिका मैम. हाँ जी. हाँ जी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. Good evening, ma'am, and congratulations, जी. Thank you so much. I got the message on the group also. I saw your message. Thank you so much. Hi, Monica. Hi. अरे बहुत अच्छा किया ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छे से एकदम से. हाँ. है ना attached I think for purpose only. You would have seen my training sessions. तो कोई उठ के जाता ही नहीं है. मैं बता रही हूँ ना उनको भगाना पड़ता है. भाई 3 घंटे हो गए जाओ. They are not ready to go. Wow. और मेरे को भी रोकना पड़ता है कि आपके 3 घंटे हो गए मैडम अब आप जाइए आप थक गए होगे जाओ आप खाना खाओ. लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है. I want to be here with the teachers. That is my passion. I don't know why, but my soul lies there. अगर मेरे को एक बार आप सेशन देखते हो ना करते हुए तो. That's amazing.
चलो, थैंक यू सो मच। मैम मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी, यस सॉरी। यस प्लीज। हेलो, हाँ सॉरी, कल हमारी बात हुई थी ना, जैसे अभी मैंने नहीं आपको चले, फ्रेंड्स कल के सुबह बारे आ में जाऊं क्या? पूछा था। हाँ, वो सुबह आएगी एक नीतू। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, वो सुबह सुबह कह रही 4 बजे चल पड़ेंगे। एक सेकंड रुको, किसका है, कौन है पार्टिसिपेंट? मैं भी फोन कर रही थी तुझे। हु इज नॉट ऑन म्यूट? क्या कर रहा था तू? बताओ, गप्पे मार रहे हैं खड़े होके यहाँ पे। I cannot see the participants list. Okay, let me see. मैडम म्यूट हो गया। हो गया ना? Thank God. Yes, Kinnari. हाँ जी, तो फिर कल जैसे मैंने आपसे पूछा था, I was a little bit upset about that as well. फिर क्या हुआ कि रात को फिर मैं सोच रही थी आपका ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दोस ब्लेसिंग्स एंड थिंग्स जो करके, मतलब अपना जो रिचुअल्स है वैसे करके, फिर सवेरे उठ के आई डिड नॉट अटेंड माय वर्क बिकॉज आई वाजंट फीलिंग गुड। बट दिन में एक फ्रेंड का फोन आया था फिर। Kinnari, you are gone. हाँ, फिर जस्ट ऐसे ही फ्रेंड का फोन आ गया कि कैसे है। हेलो, कैन यू हियर मी मैम? या हाँ, तो ऐसे ही करके कि कैसा है, क्या चल रहा है करके 2 मिनट बात करके, दैट्स इट। बट इट वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड व्हिच इज आउट ऑफ ब्लू, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। Obviously, yeah, this is what I wanted to share with you, which was an instant thing. Thank you so much. You know, always remember, कल हम यही बात कर रहे थे, we couldn't talk much about it, but always remember, detach yourself from the people. अपनी happiness को, अपने expressions को किसी पे dependent मत रखो. Be independent of yourself. And let me tell everybody, Kinnari is calling from Australia. Wow. Yeah. Thank you. That's true. And how come you got to know about these sessions? I don't know, but I really welcome you over here. And thank you so much that you're following. And Kinnari ने अपने बेटे को भी संडे को सेशन में भेजा था. I hope he liked the session. He liked the session, and along with him, मेरी daughter ने भी साथ साथ ही join कर लिया था. I was बैठी हुई थी. पहले तो वो ड्रेस छोड़ नहीं कर रही थी, पहले अपना अपना काम कर रही थी. फिर ऐसे करके थोड़ा सा देख लेती थी, फिर ऐसे कर लेती थी. थोड़ी देर के बाद ना ऐसे आके बैठ गई. The reason behind ऐसा क्यों हुआ मैं बताती हूँ, क्योंकि ना उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो she was little bit upset कि मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, भाई का करवा दिया. तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं नेक्स्ट सेशन में आपका करवा देती हूँ. Innocent kids. लेकिन मैंने उसको 2 बार ही बुलाया था. अच्छा, देखो बच्चे ऐसे ही होते हैं. They also want that respect, you know. हाँ, और मैं ये सेशन ज्वाइन कर रही हूँ मेरी सिस्टर की वजह से. उन्होंने मुझे बोला था कि probably these kind of sessions will help you to develop because I'm into those things. तो ध्वनि मेरी सिस्टर है. अच्छा, okay, got it. हाँ जी, Okay. तो उसने इंस्पायर करा था मुझे कि आप ज्वाइन करो. I'm good that you are taking care of yourself. Imagine, you be yourself, you know, don't depend on others. Yeah. Yeah, no, I understood what you said yesterday, like detach everything and should be fine. मैं समझ गई आपकी बात. तो I tried doing it today, but जैसे मैंने आपको बोला, unfortunately जो बंदा मेरे लिए खराब बोल रहा था, obviously not the friend जो मेरी जिसने मेरे से वो करा वो नहीं, but दूसरी जो friend थी उसने call करा. तो it was good, it was out of blue, जो expectation के बाहर था. I don't know why उसने just ऐसे ही करा कि बहुत दिन से बात नहीं हुई थी तेरे से, तो मैंने सोचा तुझे हाय हेलो कर लूं. मैंने बोला okay great, wow. फिर yeah, things went like that. So keep blessing people, show lots of gratitude to them. कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं घूमते फिरते वो वापस आएंगे. They will come back. But don't get disturbed by people's behavior. Actually detach yourself from the people, because you yourself is such an extraordinary personality. You are so beautiful, you are so good. Be that way. क्योंकि ये सारे जो कोर्स है ना, ये जो प्रोग्राम है,
ये सबको हाँ। सूट नहीं कर सकता, बिकॉज ग्रैटिट्यूड शो करना अपने बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ सही है। तो मैंने क्या करा मोनिका मैम, मैंने ना सवेरे उठ के सारे अपने फ्रेंड्स के, हमारे ग्रुप में 15 कपल्स हैं, हम्म। तो सबके मिला के अच्छे से फोटोज निकाल के बहुत अच्छा सा फ्रेंडशिप वीडियो बनाया। Wow, ये बात, that's cool, that's really good. You know, you हाँ blessing to everyone, you are giving gratitude to, that is the way of life. Very, हाँ। very nice. मैंने सोचा नो लेट मी जस्ट डू दिस, आई वांट टू डू इट, एटलीस्ट आई नीड टू से थैंक्स कि ये लोग मेरी Absolutely. जिंदगी में हैं, हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन कंट्रीज में फैमिलीज जहाँ नहीं होते, यहाँ फ्रेंड्स सारा कुछ मैटर हाँ, करते वही हैं। मैटर करते हैं। Very true. I completely हम्म। agree to that. I completely. हाँ, तो इसीलिए आई वाज काइंड ऑफ इमोशनल। So whenever you get emotional, just give me a call. I'm just one call away. Don't worry about it. थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Good. निशमीत कौर भी आ गई है। निशमीत कौर। हे मोनिका, सुपर कूल Hi, मेंटर, teaching. सुपर कूल मेंटर के लिए आपको बहुत 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 लाइन लगा दे टू द 10 टू पावर इंफिनिटी मुबारकबाद। Thank you so much. So blessed to have such wonderful people around me, जिनके मैजिक से मेरी जिंदगी में मैजिक हो रहा है। आए हाय, आए हाय, ऐसी लाइनें बस दिल को, I want मोनिका to तीर छोड़ दिया, दिल चीर तो क्या बोल रही है सुजाता? This Kaur is my friend. I will try to join. Okay, great, great, good, good, good. Welcome, welcome to the session, you know. Okay, let us start. So today, who is going to read? Who was supposed to read? Ishmeet is going to read. So let us start the magic in our lives, you know, and magical session by magical and motivated Monica. Magical Monica तो exist कर रही थी, और motivated Monica फिर से exist करेगी, Saturday से session है. Now again, let's do a grateful. Let's create a grateful heart, which creates lots of miracles in our lives. So let us start the class. And please unmute मत करना, because बीच में आवाज आ जाती है जब हम prayer कर रहे होते हैं, तो that it distracts everybody, you know. So please mute yourself, all of you. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for such a wonderful day. Thank you, Lord. Thank you, universe, for such beautiful moments. Thank you, God. Thank you, universe, for this magical session. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe. And bless all the doctors, all the nurses, all the staff members of the hospitals as they take care of all the patients. Let's sprinkle magic dust in each and every hospital so that they are able to take care of the patients really well. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for such wonderful parents of mine who are taking care of me, who are giving me a comfortable life. They taught me how to walk. They taught me how to run. They gave me a comfortable lifestyle. I thank them. I love you, Dad. I love you, Mom. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for such wonderful siblings I have. You can name the siblings. Thank you, thank you, thank you for being in my life. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe, for all the teachers who has contributed into my life. My school teachers, my college teachers, my mentors who are showing me the right path. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for such beautiful house I have, for all the furniture, for all the facilities, for all the resources that I have. They are making my life comfortable. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe,
for my perfect health. My cells are healthy, my organs are healthy, my each and every cell of my body is healthy. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for the failures that I had. They are giving me lots of lessons, and I'm learning those lessons and following accordingly. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for the success that I am having. Success of coming to the class, attending the class, applying the techniques into my life. Thank you, thank you, thank you. Success of being with my family. Thank you, thank you, thank you. Success for applying the techniques into my work style. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. I'm one with God and God is one with me. Thank you, thank you, thank you. Blessings be to all. Thank you so much. Okay. So yesterday practice was 10 blessings, 3 dreams out of 10 you have to write. Magically heal your relationship, and you had to choose one difficult situation or a problem or a relation. Sit and make the list of 10 things you are grateful for. You had to write down name and I'm grateful for, and then magic ritual. How many of you done the work and anybody would like to share? Kineri ne to apna share kar diya. Anybody has to share anything regarding this exercise? ओके मैम आई चलो कोई वांट नहीं, टू शेयर। Yes. कोई नहीं कर रहा था, मैं करता हूँ। अच्छा कोई कर रहा है, वेरी गुड। करो करो सर, आप कर लो पहले। अरे सब करोगे, कौन है? गो अहेड आप करो प्लीज। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली जो कल हमारी थी एक्सरसाइज मैंने वो की, उसमें जब वो मैंने लिखे सारे है ना, तो उसके बाद कि whatever happened you know everything about me right? Yes. So I feel so light। जितना एक ऐसे आपकी बात बिल्कुल सही थी, जैसे आपने कहा ना हम बोझ लेके बैठे हैं आपने, उसके बाद मुझे इतना लाइट फील हुआ। लाइक मुझे एक ना जो अंदर एक कह लो हम ग्रजेस जैसे होल्ड करके बैठी थी मैं, वो सारी एकदम से मेरी वो नेगेटिविटी चली गई। मेरे को एकदम से मैं एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर ऐसे ही अपने आप आ गई और मुझे इतना अच्छा फील होना शुरू हो गया उसके बाद। और आज फिर मॉर्निंग में भी मैंने किया अपना वो रिचुअल सारे। आई फील सो लाइट और बिल्कुल जैसे ना एकदम से शांत हुआ पड़ा है। जन्म होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, एक नया जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे कुछ सारी कहते ना एक इतनी लाइट हो गई, बॉडी भी अपने आप को इतना लाइट और एकदम से जैसे शांत, बिल्कुल कोई मन में कुछ नहीं, ऐसे बस बिल्कुल एक शांति सी, एक फेस में एक ना सेटिस्फेक्शन, एक लाइफ जिंदगी में ऐसे फील हो रहा है मेरे को बस कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड। I really wanted this to be in your life because it happens, you know, when one partner is not there, then you feel bad about it. अब उसको कर्ज करते हैं, उसने मेरी जिंदगी हेल्प कर दी, उसने मेरा ये, because we have got lots of grudges. It is not वो नहीं हुआ होगा, वो होता है, but if they are impacting my life, it is my loss, na? Right, ma'am. And we are actually getting impacted. So एक ऐसे ही लास्ट टाइम भी मैंने वो बताई थी एक छोटी सी स्टोरी, यू नो, एक वन ऑफ माय फ्रेंड उसका डिवोर्स हो गया था, एंड जो उसका डिवोर्स हो गया था और काफी उसको बीमारियां हो गई, कभी कुछ बिकॉज इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ अ थॉट प्रोसेस। जितना आप सोचोगे, जितनी आप लोगों को गालियां दोगे, उतना ही आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो। आप किसी को गाली दे रहे हो तो अपने आप को हार्म कर रहे हो, किसी की जिंदगी पे कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल मैम। तो इट इज यू हु इज गेटिंग इम्पैक्टेड। तो वो बेड रिडन हो गई, ना उठ सकी थी, ना बैठ सकी, डॉक्टर्स ने उसको दवाइयां देनी। पर डॉक्टर्स का क्या है, डॉक्टर्स तो दवाइयां देते रहेंगे आपको। आप कहोगे अरे आप, मैं कह रही हूँ आप 10 बार बीपी चेक कराओगे ना, या तो हाई निकलेगा या लो निकलेगा, एक जैसा नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। तो बट ऑलवेज, बट व्हेन यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, वो जो कहता है अरे भाई ये भी है प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, ही गिव्स यू मेडिसिन, उसका काम खत्म हो गया, बाकी आगे ठीक हो ना हो उसका कोई लेना देना नहीं होता। बट हमें हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है।
सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वो बेड रिडन हो गई, उसका मेरे पास कॉल आया, मैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली थी, तब मैंने नई नई रैकी और प्राणिक हीलिंग्स वगैरह जो मैंने सीखी थी, तो मुझे यही कहता था, फॉरगिव एवरीबॉडी and just bless them, just forgive and bless them, forgive and bless them. So I used to do the same thing, you know. उन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मेरे सर ने, कहते हैं आप जब गाड़ी लेके ड्राइव करने जाते हो, एक स्कूटर वाला आपको ओवरटेक करने लगा है, लेक करने लगता है, आप उसको हॉर्न बजाते हो, वो आपको हॉर्न बजाते हैं, वो झटके से आट के जाते हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप 2-4 गाली निकाल देते हो उसको, क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है, ठीक से नहीं चला सकता। एक बार हुआ, थोड़ी देर आप आगे जाओगे, थोड़ी देर आगे जाके भी कोई और आपको टकरा जाएगा, आप फिर उसको गाली दोगे, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर कोई आगे आ जाएगा, आप फिर उसको गाली। ये तब तक होता रहेगा। अब आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे सिचुएशंस रोज आती है हमारी जिंदगी में। सर ने मुझे बोला ये ऐसे होता ही रहेगा जब तक कि यू स्टार्ट सेइंग ब्लेस यू। द मोमेंट यू से ब्लेस यू, अगली बार ऐसा कोई बंदा आपको ओवरटर्न करता हुआ नजर नहीं आए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन कर्मास। एंड इट हैपेंड विद मी, यू नो, दैट वे। उन्होंने एक और बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी कि कोई एक बंदा जिससे पैसा देना था, खूब पैसा देना था, और जो जिसको पैसा देना था वो बंदा उसको रोज गाली सुनाता, तूने ये कर दिया, तूने वो कर, 4-5 गाली सुना देता था, सुबह शाम दिन रात उसको गाली 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 गाली। तो वो जब सर के पास आया तो सर ने उसको बोला तू उसको माफ कर दे, एंड से सॉरी, उसको माफ कर दे, सॉरी कर दे, और खूब सारी ब्लेसिंग्स भेज उसको। उसने 1 महीना ये प्रैक्टिस की, उसको खूब सारी, कहता मन में एक बार भी तेरे गाली नहीं आनी चाहिए, पता चल नहीं आएगी। 1 महीना प्रैक्टिस की, 1 महीने के बाद वो बंदा घर आके पैसे देके गया सूद से। So it happens in our you know life, you know, things keeps happening, वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है, वो है repetition, that is called a vicious circle, and it will keep on happening until and unless you stop by showing gratitude, you stop by showing blessings, and you stop by showing lots of blessings to the other person. तो उस दिन के बाद से मेरे लिए गांठ बांध ली मैंने किसी को कुछ नहीं बोलना। मैं किसी को, मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आई एम आउट ऑफ इट। दैट इज यू हैव टू कंट्रोल योर लाइफ। और उस फ्रेंड को फिर मैंने बोला कि मैंने तो ये सीखा है, मेरे ख्याल से देख, यू आर सेपरेटेड, ही इज सेपरेटेड, ही इज लिविंग हिज ओन लाइफ, यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, सो व्हाई आर यू कर्सिंग हिम ऑल द टाइम? वो उसकी मर्जी है, वो अलग रहना चाहता है, वो उसको जाने दो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग रहना दो। स्टार्ट ब्लेसिंग हिम। वो पहले मना करती रही। मैंने कहा अगर तूने जिंदा रहना है ना तो यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। और यहाँ से मैं उसको हीलिंग्स भेज रही थी, लॉट्स ऑफ हीलिंग्स आई वाज सेंडिंग, एंड किन्नरी आई वाज सेंडिंग हीलिंग्स टू यू फॉर योर रिलेशनशिप्स, यू नो, बिकॉज कल बात की थी। तो आई, बिकॉज व्हेन यू टॉक, व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, यू नो, व्हेन वी हैव वन टू वन टॉक, आई ऑलवेज कीप दोस प्रेयर्स इन माय प्रेयर्स, you know, it should get sorted out, it has to be in the highest good, you know, so always pray for the highest good. तो मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कहती हूँ वो सब होगा, बट मैं ये कहती हूँ जो होगा वो बेस्ट होगा. That is what my intention is for praying for each one of you. मैम एक चीज, सॉरी, इसी में जैसे अब ये कंटिन्यू अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अब मैंने एक चीज नोटिस की कि बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑल दिस ग्रजेस एंड इतने सालों में, है ना, मेरे में एंगर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा. तो इतने सालों में इनकलकेट हुआ है, इट विल टेक सम टाइम टू कम डाउन. तो गुस्सा आ गया, आपका गुस्सा आपकी बेटी पे भी निकलता, राइट? तो यू हैव टू ऑल्टर दैट, you have to, when you start showing gratitude, तो automatically within 10 days you will see the difference. मैं ये नहीं कहती सालों लगेंगे, नहीं, इतने सालों में वो आपका ग्रज आ ही इसलिए रहा था क्योंकि आपके मन में वो सारा जहर भरा हुआ था. Now that zahar is out, you are free. Now focus, यानी अपनी एनर्जी जो एंगर की थी, एग्रेसिवनेस की, अपने ड्रीम में लगाओ ना. बिल्कुल मैम. You will not get angry, don't worry about it, you will not. Once you start showing gratitude, आप मुझे 100% श्योरिटी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं. क्या आप लोगों में
गुस्सा आने का फ्रीक्वेंसी कम हुई है कि नहीं हुई है? लिख के दिखा दो मुझे जरा। हाँ हुई है। 100% हुई है। मैम हुई है काफी। It will, undoubtedly it will. रिएक्ट करना कम कर दिया कम मैम, कर दिया है। बिल्कुल। Yes. यस, तो चुप रहना सीखा है, चुप रहना। नहीं, चुप ही नहीं रहो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने आप को चुप कर दो, नहीं, बट शो ग्रैटिट्यूड, ठीक है accept मैम। whatever is there in your life, it is a blessing of God. Accept it and just move on. Accept it, just move on. Accept it, just move on. And keep attracting more things, you know. जो चीज नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रैटिट्यूड दो जो हुआ है, और जो चाहते हो उसको विश लिस्ट में लिख दो। कहीं भी तो गैप नहीं है, कहाँ गैप है मुझे बताओ। एक आप थैंक यू कर रहे हो जो आपके पास है, एक आप थैंक यू कर दिया जो पास्ट था आपका और उसने आपको क्लियर कर दिया, चलो मेरा पास्ट जो भी था, आई एक्सेप्ट इट, आई एम फाइन विद इट, आई एक्सेप्टेड ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ माय लाइफ। चैप्टर ओवर पास्ट का, प्रेजेंट का, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, मैं उसको ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ, रोज शो कर रही हूँ, और आगे मैं अपना जिंदगी क्रिएट करती जा रही हूँ। वो मेरे हाथ में है, ये यहाँ तक तो मैंने पकड़ ली ना अपनी जिंदगी, करंट तक। अब ड्रीम जो है, जो मेरी क्रिएट करनी है मॉर्निंग आवर्स के अंदर, मैं अपनी जिंदगी वहां क्रिएट कर रही हूँ। योर क्रिएशन स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, so it is in your hand. Yes, ma'am. So that is what. और फिर you won't believe, within 1 month, वो 6 महीने से बेड पे पड़ी थी वो लड़की, within 1 month she was out and she came to India to meet. Wow. मोनिका, प्लीज यू शेयर योर मॉर्निंग रिचुअल ऑल्सो, कुछ वेबिनार कुछ ऐसे उसका भी रख सकती हो। भैया तुमने अनमोल, they are like magicians, you know, they are magical people. उसी दिन मैं लॉन्च कर रही हूँ अपना मैजिक आवर, मॉर्निंग आवर्स का, और 1 घंटे का प्रोग्राम है। वाओ, चलो कांग्रेचुलेशन। वाओ मैम, वेरी गुड। क्या बात है, कब है भाई तो ये, कब हुआ तो पता ही नहीं लगा। So 1st August I'm launching my magic art program also. Oh. And one more program, 3 प्रोग्राम का मैं पहले अपनी कम्युनिटी से शेयर करूंगी, बाकी बाद में सबसे I'll share it. थैंक यू सो मच, वी आर ईगरली वेटिंग। मैजिक आर वाला तो वी आर ईगरली वेटिंग। Okay. यस मैम। Right. So that is what. So this is what is on, and that is what we have to take care of ourselves. Thank you, Manvi, for sharing that. I'm so happy for you. This is what I wanted you to take action in. Thank you, ma'am. It's all up for you. It's all because of you. Yes. आपकी guidance से है सारा कुछ. Thank you so much. Thank you so much for following me. Thank you so much for trusting me. Thank you so much for taking charge of your life. I'm so happy for you. Lots of blessings to you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, so let us start. So great sharing. Anmol, you wanted to share something? यार इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें आगे मेरी बेचारी नन्ही सी शेयरिंग है यार। नन्ही सी शेयरिंग भी बहुत इंस्पिरेशनल होती है, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारी आवाज के बिना वैसे ही ये सेशन कंप्लीट नहीं होते हैं। आए मोनिका, आज क्या कसम खा के बैठी हो, क्या क्या खा के बैठी हो? आज तीर पे तीर छोड़ जा रही हो भाई, दिल छल नहीं हो जा रहा है मेरा। One line or Okay. नहीं यार, what I wanted to share was this कि okay, so 2 things basically. First thing I wanted to share was कि Monica, you remember I told you about my cousin and my chachi and how I just don't want to see them. Yes. And Yes. तो कल आपके सेशन के बाद मैं इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार न्यूट्रल ठीक है अपनी जगह, let me just bless them. ठीक है, for the first time. अब तो मैं पता है मेरा लेवल ऑफ वो जो है उनके प्रति, तो कल सेशन के बाद मैंने उनको ब्लेस करना शुरू किया एंड नथिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई मैं बोलूं कि कुछ डिफरेंट हो गया या क्योंकि अभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आई शुड से कि मेरे अंदर से एक वो आ गया। इनफैक्ट मेरे घर पे अभी भी, सॉरी टू से बट उनके बारे में कुछ नेगेटिव बात हो रही थी, चीजें होती रहती है मेरे घर में, ऐसे ही डिस्कस होता है, लेकिन यू नो व्हाट वाज हैपनिंग वाज आई वाज प्रेजेंट टू द फैक्ट कि I was okay sitting, सुन रहा हूँ, लेकिन I was not taking that in. Why? Because मैंने अपने आप को वो कर रखा था कि कहीं ना कहीं मैंने कल से अपने आप को ब्लेसिंग दिए जा रहा हूँ, तो मैंने उसको अंदर नहीं लिया, या कह लो मेरे ने और खुंदक नहीं बढ़ाई उनके खिलाफ। मैंने कहा ठीक है भाई, घर वाले बोल रहे हैं, I cannot stop anybody from speaking, ठीक है भाई, जिसके लिए भी बोल रहे हैं वो,
बट मैंने सुना, मैं बैठा, लेकिन यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ पीस व्हेन यू इवन सिटिंग एंड ठीक है, Yes, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. yes. सो वो एक सेंस ऑफ, कैसे बताऊं, वो सेंस ऑफ पीस आ जाता है जो I आपको got that. इम्पैक्ट नहीं हाँ, करता है. absolutely. मेरा वहां से किताब है और वो उठा के दे देना. हाँ. तो वो एक यू नो आई थिंक इंटरेस्टिंग इनसाइट था मेरे लिए. Wonderful, understanding. very, very good. I'm so happy, you know, very, very good. And this is how you get free from all these things. And they capture your mind. Just focus on your goals. That's it. Hmm. जो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे dreams तुम्हारी जिंदगी है. So just focus on that. Right. Thank you so much for sharing. So we Most have welcome. to take lots of gratitude dose every day. And it will shift your perspective. It will shift so many things in your life. So keep doing that. Lots of abundance will be coming to your life, and there will be decrease of fear and anxiety. Thank you so much. Self-love, show self-love every day. I love my life. I love my heart. I love my body. I love my home. I love my mind. I love my little books. I love my sense of humor. I love my eyes. I love my family. I love to feel inspired. I love to inspire others. I love to feel vibrant. I love to meditate. I love to sleep. I love to drink water. I love to dance. I love to laugh. I love to create. I love my soul. I love me. Bilkul meri lines. I just love them, you know. So today, beautiful chapter, magic and miracles in health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. So, gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. So, how it helps is, we are going to do that. So, let me start the chapter. So, Ishneet, are you ready? Sure, ma'am. Yes. किसने पढ़ना था? इशनीत ने ही पढ़ना था ना? Ma'am, Meenakshi. Sorry, Meenakshi. I'm sorry. Okay, yeah, Meenakshi. Sorry, my mistake. Sorry. No problem. Because I wanted Meenakshi to read it because she was dealing with the health problem. So let us start with it. Thank you, Meenakshi, for taking the initiative. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Day 16. Yes. Magic and miracles in health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430. Then we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. Yeah. If you really want to see the miracles that happened, that is regarding to the health, how they have recovered themselves, that is given in this website. You know, if you go there, the secret.tv / stories, so you will find lots of stories over there. Yeah. Okay. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and the body, and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable
that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having the negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings. And gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body, think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance, next page, ma'am, puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has the gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access the feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. So there are 3 steps. Now just see what 3 steps are these. Step 1, health you have received, past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2, health you are continuing to receive, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Step 3, health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us. In one fell swoop,
Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and swift out all the waste products from our body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of our body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and a healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for the perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whenever it is that you want to, whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it now. Natural forces within us are the true healers of disease. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write, why are you grateful? Read your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve. Spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that had happened during the day. Day 17. Thank you. Thank you for reading. It's beautiful. Thank you. You read so Thank you. beautifully. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Monica, I want to say something. Yeah. Yeah, can I? Yes, please. Yeah, for some days, since some days, actually, I'm feeling very tired. You know, if I'm doing my exercise like ek din chhod ke ek din. Yeah, something like that. But the days I'm doing, I'm feeling a little bit. Suddenly, this happened to me. I'm feeling tired. Okay. क्या bother कर रहा है? So I'm not understand. You know what? Something bothering you. Something bothering you. Okay. और मुझे पता है आपको क्या bother कर रहा है. Know that. वो उतना सोचने का नहीं है. काम bother कर रहा है आपको और क्या है? कि पैसा नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, घर में बैठी हैं, कुछ हो नहीं रहा. Don't think about it.
you have to create it. And when you create it in the morning, create your day कि आज मुझे ये काम करने हैं, I have to finish and I am 100% committed that I will complete this task. उसका proper plan बनाओ and then every day, you know, वो तो हमारा पता है strangest secret सुनो, that boosts you, inspire you. कोई बात नहीं, अभी आज जो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर कर देगा. Don't worry about it. Yeah. Okay, thank you, Meenakshi. Deva, I have written your name. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, so this magic and miracle in health, what it is saying, magical power increases the natural flow of health. Step 1, think about great health you have received. अब अपनी जिंदगी में जरा पीछे चले जाओ. चाइल्डहुड में ये देखो कौन से ऐसे मोमेंट थे जो आपको अभी याद है, जो आप इतने फिट थे, इतने एनर्जेटिक थे, इतना मस्ती मारते थे, कुछ याद आ रहा है तो जरा जाओ और उसको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दे दो अपनी. Yes, a lot of moments for बिल्कुल. sure. मैं जब वो पढ़ रही थी ना तभी मैंने 3 मोमेंट्स निकाल लिए. मैंने तो 4-4 5-5 निकाल लिए अपने कॉलेज टाइम के. इतने मजे आए, मतलब दिस इज सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज. वो जो मैंने एक 5th क्लास का निकाला जब मैं छत से कूद जाया करता था विदाउट एनी इश्यूज. इतना मतलब जान थी, हैप्पी था, ठीक है ना. ऊपर 2nd फ्लोर से कूद जाता, नीचे रेते के टील होते थे, हम कूद जाते, हमें परवाह नहीं थी, है ना. एक 10th क्लास का निकाला जब मैं कबड्डी खेलता था. भाई साहब कोई मुझे पकड़ के तो दिखा दे, मतलब दैट वाज द लेवल. I was a champ. I have trophies in kabaddi. There was I started walking when I was 9 months old, and when I turned around 1.5, I stopped walking. So after, I guess after a couple of months, I like बहुत मालिश हुई, बहुत कुछ हुआ, and with the blessings of God and you know इतनी मेरे पे मेरी mom की और मेरी बाकी family की मेहनत से I started walking again. So it's a blessing. It's a blessing. Absolutely. Yes. Even though I don't remember, I have no memory of it. But when my parents tell me, it's a blessing that I can walk. Yeah. Yes. So, yeah, मैं जब भी 3 साल की थी, मुझे आग में धक्का दे दिया था, तो मेरा पूरा राइट आर्म जला हुआ है. तो मैं इतनी एम्बैरेस्ड फील करती थी कि मेरी शादी कैसे होगी, लोग देखेंगे तो मेरा हाथ पूरा जला हुआ है, आर्म. बट विद ग्रेस ऑफ गॉड मेरे फेस पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी की पूरी गिरी थी आग में. तो मेरे फेस पे कुछ नहीं हुआ, बाकी मुझे मेरा सारी बॉडी इंटैक्ट है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं है. तो सब पापा ने कहा कि ऑपरेशन करा लेते हैं, कि वो कह रहे थे थाइस से वो उठाएंगे, मास्क लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे. देन तो वो उस टाइम तो ऑपरेशन इतने महंगे होते थे, तो पापा कहते थे छोड़ना. फिर लोगों ने कहा कि एक थाई से निकालेंगे तो छोटी पतली हो जाएगी, छोड़ो ना, कोई बात नहीं. तो बाद में मैं फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनती थी, इतने एम्बैरेस्ड रहती थी कि भी कोई मेरा जला हुआ बाजू ना देख ले. तो उसके बाद धीरे उसके बाद जब मैंने शादी करके आई, तो जब रजत और मेरी शादी भी इट वाज अ लव मैरिज ओनली, तो इट वाज हार्डली बॉदर्ड. बट उसने मुझे एक बोला कि मुझे स्लीव्स वाली ब्लाउज नहीं चाहिए, मुझे विदाउट स्लीव्स. उसके बाद से आज तक मेरे पास स्लीव वाला एक भी ब्लाउज नहीं है. आई वेयर ऑल स्लीवलेस. That's so great, ma'am. That's so great. All sleeveless. Even in fact, whatever suits I buy, ठीक है, वो schools के अंदर जाना होता है तो मेरे कुर्ताज भी है full sleeves वाले. But मेरे जितनी भी साड़ीज है, all blouses. I remember when I saw you. ऐसा तो कुछ मुझे पता भी नहीं चला, ऐसा वो हमें लगता है बस, ऐसा कुछ होता है. तो अब कहीं नहीं है, सिर्फ दिमाग में होता है, अपने दिमाग में. उसके बाद से I never felt कि कुछ ऐसा कुछ है. कभी कभार दिख जाता है तो other than also I love it because उस बाजू ने सारा जलन ले ली ना मेरे फेस पे आने दी, मुझे कहीं नहीं आने दिया. So what a blessing of God, you know. Whatever happened, I was pampered at home. So that way, you know. Chalo, next. Okay, magic and miracles in health. So think about the great health. अब इस टाइम पे आपके ऑर्गन्स के बारे में, आपके सिस्टम्स के बारे में, आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में. ऐसे देखना कोई आया है क्या? हाँ, कुछ नहीं. सॉरी. सो आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में, आर्म्स, लेग्स, ईयर्स, लिवर, अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है आपकी, आप ये ध्यान रखो. और तीसरा,
create future any area to improve thing and it's ideal. First of all, आप सबसे पहले करोगे, आपने चाइल्डहुड कर लिया, अब सेकंड आपने काम करना है अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सा एरिया है जहां पे आपको काम करना है, जहां आपकी बॉडी में, इफ इट इज वेट तो उसकी क्या प्रेयर होगी। अगर आप यतीश जी आप कल पूछ रहे थे किडनी के बारे में, देखो आपने अट्रैक्ट किया और आज चैप्टर आ गया। हाँ। एंड आपके लिए स्पेशली मैंने प्रेयर लिखी है इसके अंदर, वो आप स्नैपशॉट ले लेना। तो नाउ आज का जो आप करोगे वो होमवर्क घर में करोगे आज, बट यहाँ प्रेजेंट एक्टिविटी आपको फ्यूचर के लिए करनी है। फ्यूचर के लिए क्या एक्टिविटी करनी है कि आप अपने फ्यूचर में अपनी बॉडी को कैसे देखना चाहते हो, आपके बॉडी ऑर्गन्स का, किसी को कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ, वो सब दिमाग में रखते हुए आपने फ्यूचर के लिए उसको कैसे प्रे करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू से फॉर किडनी स्पेशली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm so blessed and grateful to universe for strong and healthy kidneys that are filtering and sifting the waste product from my body. अगर हमें नहीं पता उस बॉडी ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है तो आप ये लिख सकते हो, I'm so blessed and grateful to universe for strong and healthy, उस बॉडी पार्ट को लिख के it's functionally perfectly fine. It's functioning perfectly fine, so you can write out that. Similarly, अब healthy heart के लिए आपने करना है, maintains के spelling गलत हो गए। Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to universe for strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in my body. So this is the, all of you take out your register and pen. आज की डेट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। ओके, सबसे बड़ी बात है वेट, कि हमारी बॉडी वेट क्या होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर द आइडियल वेट ऑफ माय बॉडी दैट इज दिस इज मेंटेन्ड। लिख लो। और मैंने सिर्फ यही प्रेयर करके, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ ये प्रेयर करती हूँ सुबह शाम, और मैंने अपना वेट 58 बना लिया है विद ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा डबल चिन गायब हो गया, मैं खुद हैरान हो गई कि हो क्या गया, अपने आप कैसे गायब हो गया। सो दिस, आई एम नॉट डन एनी एक्सरसाइज, आई एम नॉट डन एनीथिंग, इट इज जस्ट व्हाट prayers and what gratitude you give to your body, that is the most important thing. So all of you please take out your register and pen and start writing about any one thing, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आपका कोई बॉडी पेन हो, कुछ हो। मीनाक्षी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी बॉडी पेन के लिए परफेक्टली हेल्दी बॉडी एंड इट इज रनिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ये ग्रैटिट्यूड लिखोगे, लिख के आपने विजुलाइज करना है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, उसका आइडियल स्टेट। जैसे किसी को बुखार है 104, उसने कैसे अपनी प्रेयर लिखनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यूनिवर्स for my healthy body and ideal temperature of 98 point whatever it is 6। तो आप आइडियल स्टेट को डाल के उसके साथ कंपेयर करोगे और वो डालोगे। सिमिलरली किसी का कोलेस्ट्रॉल है, सिमिलरली किसी की डायबिटीज है, सिमिलरली आइडियल स्टेट जो होती है वो लेके चलोगे और उसको डाल दोगे प्रेयर। तो सपोजिंग अगर अभी मेरे हाथ पे लगी हुई एंड आई कांट मूव इट, तो आई राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड दैट माय हैंड इज कंप्लीटली ओके एंड वर्किंग। I am so blessed and grateful to the universe that my hand is perfectly fine and it is I can write, I can hold things, वो सारा कुछ लिखोगे। और आंख बंद करके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, spend 1 minute visualizing the ideal state of your body, कि आप जैसे जब आपका हाथ बिल्कुल ठीक था, आप उससे फुटबॉल खेल सकते थे, आप खाना बना सकते थे, आप ये कर सकते थे, जस्ट वो विजुलाइज कर। दिन में 3-4 बार करोगे, you won't believe within 2-3 days it will be perfectly fine. मैम, so जो अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उसके लिए हमें कौन से बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलना चाहिए? लंग्स को, इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनाइजेशन ऑफ योर बॉडी, इम्यूनाइजेशन। ओके, हाँ। So I'm so blessed and grateful to universe that my immunization of my body is so strong and functioning really, really well.
Alright. That's it. हम सारी बॉडी के लिए तो बोल ही रहे हैं ना, फॉर माय आइडियल हेल्दी बॉडी, हाँ, उसमें हाँ। भी कुछ आ जाएगा। उसी में आ जाएगा। That will be ठीक है जी, अब मैं आपको बहुत बढ़िया सी एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। वीडियो टाइम। excited. Excited. ये it is so beautiful. 3 निकाली है लेकिन 2 दिखाऊंगी। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे आप जी। देख रहे हैं तो इसमें हम अब जैसे मुझे ना ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड कुछ एलर्जीज हुई हैं और वो रिपीटेडली एक ही जगह पे ना बार बार हो रही हैं। व्हेन आई वाज इन पंजाब तो वहां पे बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आई फिर से शुरू हो गया वैसे ही। सेकंड आपके पास नीम का तेल है? नीम का तेल नहीं होगा मैम, मैं वो मंगवा लूंगी। नीम का तेल मंगाओ। हाँ जी। 5 दिन नेवल में डालो, 5 ड्रॉप्स, आपकी एलर्जी सब खत्म हो जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है। तो इसके लिए अगर जैसे हम ये लिखते हैं तो हम ये विदाउट एनी My एलर्जी। skin is shining. My skin is so beautiful. My skin is shining. It is perfectly fine. I'm loving my skin. जैसे कि मैंने अपनी हेयर के लिए लिखा है, my hairs are so healthy, so shining, Strong so and thin, so heavy, strong. heavy. Exactly. तो मैम क्या हम इसमें विदाउट वर्ड भी नहीं यूज कर सकते? लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, विदाउट वर्ड तुम कामयाब नहीं। हो पा रहे, तो दोस्त वो भी नहीं यूज कर सकते? नहीं, क्योंकि ये 5 विदाउट नो नेगेटिव वर्ड्स। को साइड में करके हमारे सपनों को हकीकत में लाने। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कोई नेगेटिव मतलब मुझे ये ना हो नहीं बोलोगे। अच्छा मोनिका, एक क्वेश्चन मेरा, मैंने अभी भी देखो ग्रुप में बड़ी इतनी सेक्सी फोटोज शेयर करनी है, बट एनीवेज माय पॉइंट इज, है ना, आई लव दैट फोटोज एनीवेज। माय पॉइंट इज कि आई जस्ट वांट टू गेट बैक टू द शेप दैट आई एम इन दैट फोटोज, लेट मी से इट स्ट्रेट एंड तो क्या मेरे को उसके लिए थैंक यू लिख के करना पड़ेगा, फोटोज को देख के करना चाहिए? व्हाट इज एब्सोल्युटली विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, आपकी प्रेयर साथ होनी चाहिए और साथ में अपनी बॉडी को थैंक यू करते जाना है। थैंक यू, एंड व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, थैंक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। वो सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप यू आर अप्लाइंग यू नो सोप और वो जो आपकी बॉडी वॉश करती है जो भी है। सो उसको जितना आप स्क्रब करते जाते हो, जैसे वाओ यू आर शेपिंग अप, और इट एक्चुअली रिड्यूसेस दैट दोस यू नो फैट। नाइस। और वो फोटो को रख के भी विजुअलाइज करके फोटो को लगोगे कि ये दिस इज माय आइडियल, दिस इज आई एम दिस। शीशे में खड़े होके अपनी तारीफ करते जाओ। पुट अ टारगेट, डोंट से गिव अ डेट और अ टारगेट। विदाउट डेट वो इंटेंशन नहीं आती है। सपोज आपने 15 दिन का टाइम दिया, आपने 1 महीने का टाइम दिया, आपने 1 महीने आज से शुरू कर रहा हूँ, अगले महीने, so you have to declare the date, you know, because then your intensity increases. So अरे wow, and then you are actually energized, you know, enthusiastic कि भाई चलो भाई अब ऐसे हो जाएगा, अब ऐसे, and it will happen. ठीक है, got it. Target date होनी जरूरी है। ठीक है जी। Okay, Monica, जब like for my feet, so I should write, I am so blessed and grateful to universe for my strong and healthy feet. That I'm able to walk, run. I'm running, I'm dancing, I'm stepping up and down. Perfectly fine. It is functioning so well. और visualize करो कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, डांस कर रहे हो, वो मोमेंट्स जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं उसी को मोमेंट्स को देख देख के करते रहो। और ब्लेस आपने, ग्रैटिट्यूड आपने ऑर्गन को शो करना है, और विजुअलाइज आपने करना है कि आप डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, अरे वाह, दैट एज इफ इट हैज बिकम अ रियलिटी। Okay, and I should also visualize what I used to do, like बचपन में, या मैं जब खेल रही हूँ, बैडमिंटन खेल रही हूँ। ये तो होमवर्क है ना, आप होमवर्क की बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो? अगर इसकी बात, इसमें क्या विजुअलाइज, इसमें क्या विजुअलाइज किया, आई फील सो ऑसम। हाँ, इसमें ये विजुअलाइज करना है कि आगे फ्यूचर के लिए। देखो होमवर्क में ना 3 चीजें हैं। हाँ। 3 चीजों में क्या है? पहला चीज है कि आपने ग्रैटिट्यूड शो करना है। कैसे? जब आप चाइल्डहुड में थे, जब आप एडोलेसेंट में थे, और जब आप एडल्टहुड में हो। तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? जब आप सबसे ज्यादा खुश हो, बेस्ट मोमेंट, जब सबसे खुशी का मोमेंट क्या था आपका, उसको ग्रैटिट्यूड शो करना है। एक होमवर्क ये हो गया। और सेकंड होमवर्क है आपका, जो आप एट प्रेजेंट है,
एट प्रेजेंट में आपने क्या करना है, आपकी बॉडी में जो भी बॉडी है, जो एट करंट बॉडी है, उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि मेरा ये भी अच्छा काम कर रहा है, मेरी आईज भी बहुत अच्छी काम कर रही है, मेरे ईयर्स, हर बॉडी पार्ट को आप, इट इज फंक्शनिंग रियली वेल, यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ यू। ओके, ठीक है। और तीसरा होमवर्क जो आपका वो है कि आप फ्यूचर में आप अपना क्या करना चाहते हो, अपने स्पेसिफिक कोई एरिया है अगर आपका, जैसे आपका फीट है, तो आप उस पे क्या करोगे, वो होमवर्क है। तो 3 होमवर्क है। ओके, ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें जो अब मैं विजुअलाइज करूंगी वो मैं विजुअलाइज करूंगी फॉर माय प्रेजेंट। क्योंकि ये 5 कहानियां सुनने के बाद तो अपने सारे बहानों को साइड में करके तुम्हारे सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दोगे, और ये वादा रहा। और 5 कहानियां खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, क्या वाकई में वो प्रॉब्लम्स है या फिर बहाने हैं जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे रहे। कहानी नंबर 1, स्टीफन हॉकिंस। 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय करते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटो न्यूरॉन डिसीज नामक एक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने इन्हें यहाँ तक बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे, और धीरे धीरे इनके एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो गए और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी तो सब खो दिया, पर इसने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई, और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना बोल सकता था, और ना ही कुछ कर सकता था, फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके पास तो जेन्युइन रीजन था कुछ भी ना करने का, पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते। अगर हमें सर्दी जुकाम भी हो जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते, और इस बंदे ने अपने जिंदगी के 55 साल एक व्हील चेयर पर निकाल दिए, और जो कोई नॉर्मल बंदा भी शायद अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करके दिखा दिया। यही है वो पागलपन जो हर कामयाब बंदे में आपको देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा पागलपन आए आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये बंदा कर सकता है, तो इतनी फैसिलिटी के साथ हम क्यों नहीं। बस जरूरत है आलस को बाहर फेंकने की और इनके जैसा पागलपन अपने अंदर लाने की। कहानी नंबर 2, लीक ओजस। दोस्तों, मान लो कि अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पैर बांध दे, तो उसे 1 घंटे में खाली बैठने के अलावा आप और कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ये ऐसे है। ये सुनने में आसान लगता है दोस्तों, तो जरा इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करो इस चीज को। और ऐसी हालात में इसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया, और आज भी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, और आज दुनिया का वन ऑफ द टॉप। एंड दिस पर्सन, ही ड्राइव्स, ही स्विम्स, मतलब ये सब कुछ करता है ये बंदा भी। यस यस यस, मैं कल भी वीडियो देख रही थी इसका। ओह माय अमेजिंग। इसके ये अपना कपड़े भी खुद पहनता है, सब कुछ खुद करता है। ड्राइव मतलब इट इज अनबिलीवेबल जो ये ड्राइव करता है। वीडियो भी, अरे ये सारे स्पोर्ट आपको पता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे खेलता है, स्विमिंग से लेकर, ठीक है, बास्केटबॉल से लेकर पैराग्लाइडिंग से लेकर एवरीथिंग। यस। और कुकिंग भी करता है इसकी वीडियो में। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में देखने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स दिया, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पैर का नाखून निकल जाए तो 2 दिन तक हम वैसे बाहर नहीं निकलते, और ऐसी हालात में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? ये कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, और मुश्किलें ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। निक हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कहानी नंबर 3, मुनीबा मजारी। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे चलना फिरना पूरा बंद हो गया। साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मां बनने की काबिलियत को भी खो दिया, और ऐसी हालात में इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारने पड़े। इसी बीच इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, और फिर एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया इस हालत से बाहर निकलने का और अपने सपनों को पूरा करने का, और झोंक दिया खुद को इस आग में। और आज ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटर, व्हीलचेयर मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर है। और इसी की बदौलत जो कभी खुद को नहीं संभाल सकती थी, वो आज कईयों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये होती है ताकत अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुम रास्ता खोज ही लोगे। कहानी नंबर 4, श्रीकांत बोला।
दोस्तों अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो बंदा बचपन से अंधा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए इससे पहले इस बंदे की कहानी एक बार सुन लेना। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से था, लेकिन बचपन से इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन के बावजूद ये बंदा रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर दिया और फिर 6 महीने बाद इनको एडमिशन मिल गया। और खाली एडमिशन नहीं लिया, इस बंदे ने 12th के बोर्ड एग्जाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया और इसके बाद कैम्ब्रिज की MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की और हजारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। जो बंदा खुद देख नहीं सकता वो हजारों को काम दे रहा है। Isn't it great? और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 के लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। कहानी नंबर 5, स्पर्श शाह। दोस्तों 14 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जिसको बचपन से एक बीमारी है जिसे ब्रिटल बोन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर आप जोर से शेक हैंड भी करोगे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसके बॉडी में 130 फ्रैक्चर थे। बिना किसी के मदद के ये चल फिर भी नहीं सकता था और ऐसी हालात में इस बंदे ने सपना देखा एक म्यूजिशियन बनने का और 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खुद को इतना बेहतर बनाया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गाने को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभर रहा है। दोस्तों अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं तो साला दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तू नहीं कर सकता। मुश्किलें तो हर एक के लाइफ में आती है, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो यकीन मानना दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। आग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ आपका द विल पावर स्टार। अब मोनिका, इस बात पे मुझे 2 कहानियां छोटी सी याद आ गई। ठीक है, एक अरुणिमा सिन्हा की, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हिम, है ना, उसके मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके पैर कट गए थे ट्रेन के उसमें। उसके बाद वो बचेंद्री पाल से ट्रेन लिख के उसने दुनिया की ऐसी कोई माउंट एवरेस्ट से लेके ऐसी कोई पीक नहीं है जो उसने क्लाइंब नहीं करी, डिस्पाइट नॉट हैविंग आर्टिफिशियल लेग्स, यू नो व्हाट शी वेंट थ्रू। एक दूसरा बंदा वीडियो मैंने रखा हुआ है, उसका वीडियो भी तुमको मैंने दिखाना था। उसने मतलब उसका जो उसको ट्रेन से फेंक दिया गया था। हाँ एग्जैक्टली। एंड 3 days she was on the train track. ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, चूहे उसकी वो मांस खा रहे थे, all those things happening, you know. उस पेन के अंदर फिर किसी गांव वालों ने देखा, फिर वो लोकल हॉस्पिटल लेके गए। लोकल हॉस्पिटल में क्या एनेस्थीसिया नहीं होता है, तो एनेस्थीसिया नहीं था तो उसको कहा था, कहते मैं इतनी पेन तो मैंने सह ली, आप इंजेक्शन लगा भी दोगे तो मेरी सेहत पे क्या असर है, आप लगा दो, इट डजंट मैटर टू मी। उसके बाद जब वो आई, उसके बाद जब वो बच गई तो उसने बोला मैं बची कुछ करने के लिए हूँ, ऐसे करने के लिए नहीं बची हूँ मैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, भगवान ने मुझे बचा लिया है, नहीं तो लोग तो मर ही जाते हैं 3 दिन में। तो कह रही है अगर बचाया है ना तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो ये बचेंद्री पाल से मिली, तो बचेंद्री पाल ने बोला कि ये तो एवरेस्ट चढ़ना कोई वो थोड़ी है, तुम तो ऑलरेडी एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, जो तुमने किया है वो तो उससे ऊपर है, वो तो तुम चढ़ गई। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गो देयर। उसने उसको फिर ट्रेन करना शुरू किया, उसने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया एंड शी स्टार्टेड हर ट्रेनिंग एंड देन शी वन दैट। उसकी भी स्टोरी मैंने अभी रिकॉर्ड करके डाली हुई है। एक और स्टोरी है जो शायद कम लोगों ने सुनी, बट बहुत अच्छी स्टोरी, कभी सर्च मारना, जूलियो इग्लेसियस की। ठीक है, 1940 की कहानी है। जूलियो इग्लेसियस जो था कि मतलब वो उसको बचपन से जुनून था उस बंदे को। मैं बताऊंगा आपको, जब जानोगे ना कौन है तो आपको अपने आप रिकॉग्नाइज देगा। उस बंदे को बचपन से जुनून था कि मुझे फुटबॉलर बनना है, ठीक है, और वो इतना अच्छा खेलता था कि मतलब वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वो ट्रेन होते होते मतलब वो नेशनल टीम के सिलेक्शन में जा रहा था, वह हो चुका था सेलेक्ट, खेलने जा रहा था। एंड द डे ही वाज अबाउट टू लीव, उससे और पूरे दुनिया को, उसके माँ बाप सबको यकीन था कि बिकॉज ही वाज सो गुड इन हिज गेम कि ये बंदा कुछ कर देगा, अनअमेजेबल, स्पेन का था, स्पेन के लिए कर देगा।
अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो जा रहा था उस दिन ही मेट विद अ बैड कार एक्सीडेंट, ठीक है, एंड ही वाज पुट ऑन बेड लाइक लिटरली फॉरएवर, ही इज दैट, एंड उसके ऊपर टांगे वांगे यू नो, एंड ही नीडेड टाइम टू रिकवर, 2-4 साल जो भी, एंड यू नो उस जमाने में उस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स नहीं होते, तो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, एंड उसने उस टाइम को करने के लिए ही स्टार्टेड यू नो डूइंग म्यूजिक, ठीक है, ही स्टार्टेड कि यार कुछ तो करना है, आई मीन जिसके आप सोचो पूरा सपना टूट गया, सब कुछ वो बनने वाला था वो खत्म हो गया, उसने म्यूजिक बनाना शुरू किया टाइम के लिए कि क्या करे, टाइम करने, एंड ही पैशन था, उसको लगा मेरा पैशन है, मैं इस पर कुछ करता हूँ, गिटार मंगाया, गिटार करना शुरू किया, म्यूजिक वहीं सीखना, वहीं करना शुरू किया, करते करते ही एनरिक इग्लेसियस का शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, उसके ग्रैंडफादर थे, ही वाज अ इंटरनेशनल सॉन्ग, वो दुनिया का, स्पेन का और यूरोप का आज तक का उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ही इज द मोस्ट फेमस सिंगर एवर बोर्न, ठीक है, इफ यू चेक आउट, यू कैन चेक आउट ऑन विकिपीडिया अबाउट हिम, ठीक है, एंड दैट गाय टर्न्ड कंप्लीट लाइफ, मतलब ऑब्वियसली उसको रिहेबिलिटेशन में टाइम लगा, बट सोचो जिसका पूरा सपना खत्म हो गया, वो उस टीम में नहीं जा सकता था, एज बार और व्हाटएवर रीजंस, ही कुड नॉट गो बैक टू फुटबॉल बिकॉज ऑफ हिज लेग, ही क्रिएटेड एन ऑल्टरनेट कैरियर, वो भी ऐसा कि मतलब पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई वो नो सिंगर नहीं बचा बना, दैट इज सो आप ये देखो हमारे पास क्या रीजन है, उनके भी रिलेटिव्स हैं, उनके भी रिलेशंस हैं, उनके भी जिंदगी में यही हो रहा है जो हम सबकी जिंदगी में हो रहा है, हम रीजंस लेके बैठे हैं, उनके पास कोई रीजन भी नहीं। इमेजिन करो ना, उनकी भी जिंदगी में, बल्कि ये लोग तो हैंडीकैप्ड हैं, उसके बाद इन्होंने अपनी जो इनकी कमी थी उसको इन्होंने स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ लिए, और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है आगे बढ़ने। सो जस्ट सी यू नो, हम किसी ने कुछ कह दिया, हम उसका ग्रज लेके बैठ गए, उसने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, आप अगर उसको मीनिंग नहीं दे रहे हो तो उसने कुछ नहीं बोला है, उसको जवाब दोगे वो आपको फिर जवाब देगा, उसने आपको ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, इसी झमेले के इसी हम चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो हमारा फोकस है वो हमारा गायब हो जाता है। सो व्हाई कांट वी फोकस ourselves to the future, for the future that we know how to create it. Now we have a magic with us, magic stick आपके हाथ में, magic pen आपके हाथ में, create your day ना, हर रोज का दिन बनाओ, अपनी हेल्थ बनाओ, हर चीज आपके हाथ में है, हर चीज आपके हाथ में है। आज सुबह सुबह ही मेरा बड़ा मूड खराब हुआ, जैसे सुबह में उठी तो मेरी सिस्टर ना मेरे कमरे में आई, तो मुझे बोल रही है कि एक डॉगी पीछे रो रहा है सुबह से, उसका हम ना लोग पीछे भी खाना देते हैं, आगे भी खाना, 2-3 डॉग पीछे आ गए हैं दोनों तरफ, तो रोज आता है खाना खाने, कल वो खाना खाने नहीं आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि वो खाना नहीं खाने आया, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो हो जाता कई बार स्किप कर जाता था, तो कह रहा है आज वो कार के नीचे लेटा हुआ है और रो ही जा रहा है, सुबह से रो रहा है, तो हमें थोड़ा सा अटैचमेंट है उन कुत्तों के साथ, तो फिर मैंने सुबह से मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सवेरे से उसके लिए प्रेयर कर रही थी, उसको मैजिक डस्ट डाला, फिर वो डाला, फिर मैं नीचे उतर के जब आई, जब मैं उसको देखने गई, वो बिल्कुल लेटा हुआ है और मतलब चीखे मारा, लिटरली रो रहा था जोर जोर से, तो हमने फिर उसको दूध दिया, पानी दिया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल के दिया, बट ही वाज नॉट टेकिंग, तो मैं उसके लिए हीलिंग करनी शुरू, मैं 15-20 मिनट में खड़ी थी, उसका हीलिंग किया और मैजिक डस्ट डालती गई। Then I tried calling फ्रेंडिकॉस कि भाई उसको आके ले जाओ, फ्रेंडिकॉस वाले कह रहे हैं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, मैंने थैंक यू किया, मैंने अपने सारे टूल्स यूज कर लिए, सब कुछ कर लिया कि भैया, फिर आई वेंट पर्सनली 2-3 हॉस्पिटल्स कि उसको, क्योंकि कार एक तो सबसे पहले कार के बिल्कुल नीचे घुसा हुआ है और पता नहीं किसकी कार थी वो, एंड वी कुडंट टेक हिम आउट, हम कैसे निकाले, कहाँ लेके जाए, किस में लेके जाए, तो वी थॉट कि उसी को हॉस्पिटल में ही बोल देते हैं। देन वी वेंट टू एमसीडी के, वहाँ फोन किया, वो कह रहे जी यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, फिर वो कहते जी फ्रेंडिकॉस को कॉल करो, फ्रेंडिकॉस को कॉल किया, वो नहीं है, फिर हम पर्सनली गए, मैं मेरा बेटा जिसमें हम गए बुलाने के लिए, वो कह रहे हम 500 रुपए लेंगे, हमने कहा हम 500 रुपए दे देंगे, प्लीज उस डॉगी को ले जाओ यहाँ से, बट मैं नंबर लिखवाई, एड्रेस लिखवाई, दे डिडंट टर्न अप, यू नो। फिर उसके बाद मैंने कहा आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेट मी डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दैट डॉग, बिकॉज मेरे ख्याल से आप सोचो 2:30 तक आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको वहां तक ले जाऊं, तो जो डेस्टिन्ड है वो डेस्टिन्ड है। देन आई टोल्ड टू यूनिवर्स एंड आई सेड टू गॉड नाउ I did my best, now it's your call what you have to do,
whatever happens for the best. Thank you and bless you करके मैंने डिटैच कर लिया अपने आप को। फिर मैं अपनी क्लास की तैयारी जो भी हम लोग काम करते रहे, फिर मैं जब खाना शाम के अभी मेरे को सेशन के लिए आना था तो आई जस्ट वेंट डाउन लाइक जस्ट टू सी, क्योंकि मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो मुझे ये लगा कि मस्ट हैव गॉन, तो एक्चुअली इज गॉन। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। उसके बाद फिर अब एनसीडी वालों को फोन किया कि एक डॉग है वो आप ले जाइए, बिकॉज यहाँ पे 1-2 दिन पहले एक कैट के साथ हुआ, अब ये डॉग के साथ हुआ। So I have started, praying over here for all the animals nearby कि they should be protected, they should be, और सबसे बड़ी बात हमें दुख इस बात का हो रहा था, हर एनजीओ इतने सारे एनिमल्स के ट्रस्ट बने हुए हैं जो इतने डंके की चोट पे कहते हैं हम ये करते हैं, आज शायद ही कोई ऐसा मतलब जिनका कॉल नहीं लग रहा, मतलब कोई हम सुबह से 3-4 घंटे में मेरी फैमिली में हर कोई बंदा कॉल लगा के कर रहा था कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए, but we couldn't. Monica, probably, see, don't take it as well, but probably he was destined for whatever he's experiencing. Absolutely. I mean that, and probably was destined to go maybe for a better life next time. Absolutely. But at least I would like to जो था ना, वो जो रो रहा था ना, I understand. कोशिश कर रहे थे कि मैंने उसको हीलिंग भेजी, मैंने I understand. बट जो अगर मेरी हीलिंग से नहीं ठीक हो रहा तो इसको ना तो दवाई अगर आ जाए, तो मैं चाहती थी कि कोई हॉस्पिटल उसको ले जाए। उससे आगे वाला डॉगी था, वो हॉस्पिटल ले गया था, 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, हम उसको देखने भी गए थे। एक काली हमारे घर के बिल्कुल सामने रहती है, वो घर के सामने ही एक और, अब क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से वो ऑफिस भी बंद था, दे सेड मेरे फ्रेंडिकोस जाओ, फिर फ्रेंडिकोस हम पर्सनली गए, वहां जाके मैंने रिक्वेस्ट किया था हम 500 रुपए, मैंने कहा आप 500 रुपए मेरे से अभी ले लो प्लीज, लेकिन उसको ले जाओ। बट ठीक है, बट देन ऑल्सो वी नीड टू actually pray for these hospitals. They should actually support these animals. वो आते नहीं है, जान के नहीं आते, क्योंकि कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता, they are just bothered about the money की money दे दे। और मैंने सुबह मतलब I was feeling bad about it, but then I detached myself. I said bless, वो अच्छी युग में जाए, अच्छी योनि में जाए, that is what it is like. So but अपनी तरफ से जो हो सका हमने किया, so that is the best part. Yeah. Okay. So this is how you have to do the prayers. Now again, I request everybody to remain in the positive energy rather than in the negative energy, क्योंकि ये चीजें आपको impact करती हैं। अब जब ऐसे 4 लोगों ने इन सब लोगों की, देखो आपको फिर भी लोगों ने इतने ताने नहीं दिए होंगे जितने ताने इन लोगों को मिलते होंगे जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके सब काम किया। हर कोई कहता, अब मैं वो भी आपसे शेयर, लेट जाता है नहीं तो मैं वो भी शेयर कर देती आपसे, मतलब वो भी मैंने डाउनलोड की थी बिकॉज आई सॉ दैट इट इज ब्यूटिफुल, यू नो। मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना, दोबारा स्टार्ट करना होगा मोनिका। ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था, फिर वही ना मौत। मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था, फिर वही ना मौत तो आती लिखते जल्दी नहीं, कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस टफ गेम की बात अरुणिमा जी कर रही है, वो किसी के लिए भी खेल पाना आसान नहीं है। पर अरुणिमा तो एक पैर पर आसमान पर चढ़ाई करने वाली थी। उन्हें जाना था दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने। अरुणिमा ने ठान लिया था अपने डर को जीतने का और अपनी कमजोरी को हराने का। पर जब अरुणिमा के इस लक्ष्य के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई तय करना कोई आम बात थोड़ी है। मनोरोग चिकित्सक को भी बुलाया गया, पर कुछ अपने थे जिन्हें अरुणिमा पर पूरा भरोसा था। अब कोई मुझे पागल बोलता है, ठीक है, मुझे अब जब पागल बोली नहीं है तो क्यों ना, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है।
क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। तो मेरा परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना जबरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना जबरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना जबरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जैसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो है वो ये लोग हैं। अरुणिमा में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, और जब उस आत्मविश्वास में अपनों का विश्वास जुड़ा तो अरुणिमा की हिम्मत और बढ़ गई, और फिर शुरू हो गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर। एवरेस्ट चढ़ने के इरादे को कामयाब करने की राह में अरुणिमा ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। इस सफर में उनकी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। अरुणिमा ने 2012 में बछेंद्री पाल जी के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर शुरू कर दी एवरेस्ट की चढ़ाई। पहली बार मैंने इतने करीब से पहाड़ को देखा था, फिर मैं अपने पैरों को देखती, पहाड़ को देखती कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरुणिमा के रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें पहले ही कम नहीं थी, ऊपर से खराब मौसम ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो चुका था। बची थी तो बस अरुणिमा की हिम्मत। आपको शायद विश्वास ना हो, पर एवरेस्ट से वापस आते वक्त अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर पूरी तरह से निकल चुका था, और एक पैर पर ही अरुणिमा को वापस नीचे उतरना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने आखिर छू ही लिया आसमान। जो 6 से 7 मिनट है मेरी जिंदगी के, वो सबसे अनमोल पल है, क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हैं। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाती, जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे जिंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे, तो मैं उनको चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहां पर जब निकाल के लगा रही थी, मैं तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से, तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग, यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे। असंभव को संभव कर दिखाया अरुणिमा ने। बता दिया पूरी दुनिया को कि विकलांगता किसी के भी जीवन में कभी बाधा नहीं बन सकती। और अरुणिमा ने 20 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनने का इतिहास रचा, और हौसले और जज्बे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो हर इंसान को प्रेरित करती रहेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों हूँ, इस वक्त को ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए उनको सन 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके हिस्से में आई और भी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां। पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने के बाद अब अरुणिमा का ख्वाब था कि वो देश के दूसरे दिव्यांगों को भी सशक्त करें, और उसी का नतीजा है ये स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है अरुणिमा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को साथ मिला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। 2011 में इसको रजिस्टर्ड कराया था। इसका मकसद यही है कि जो बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, और क्योंकि समाज में एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि दिव्यांगता को लोग एक दृष्टि से देखते हैं, तो इनको लोग बहुत ज्यादा जगह नहीं देते हैं, और बस उनको एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस ट्रेनिंग संस्था में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जाते हैं 3 प्रोग्राम: हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इन क्षेत्रों में यहाँ दिव्यांगों को दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल, खाना पीना, चाय नाश्ता टोटल निःशुल्क, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है, टोटल फ्री है। यहाँ बच्चों को आवासीय सेंटर देके उनको मानसिक तौर पर मजबूत बनाना, बौद्धिक विकास देना,
हमें इन बच्चों को मजबूर नहीं बनाना है, मजबूत बनाना है। ये हमारे फाउंडेशन का पहला ध्येय। इरादों में मजबूती होने का महत्व भला अरुणिमा से बेहतर कौन जान सकता है। अरुणिमा फाउंडेशन में 3 अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं 180 दिव्यांग। ये केंद्र ऐसा है कि प्रशिक्षण के साथ साथ उनको रोजगार भी हम मुहैया कराते हैं। तो वो एक हमारा जिसको कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमको आईटी की ट्रेनिंग दी जा रही है और डोमेस्टिक डाटा एंट्री के तहत ये ट्रेनिंग हम लोग अब जब हम जाते हैं अपने गांव तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। हम जाते हैं तो लोगों का बदलाव और बिहेवियर हम लोगों से बहुत अलग होता है और इज्जत देते हैं ज्यादा लोग जो है। कौन कहता है दिव्यांगों को सहारे की जरूरत है? इन्हें तो बस समझने की जरूरत है। रोजी रोटी का जरिया और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कह दो आसमान से तैयार हम। विकलांग समाज के एक उदाहरण बन गए। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब आपके पास है मनोबल। तरक्की का शिखर छू सकते हैं जब आपके पास है कौशल। कौशल भारत, कौशल भारत। Great. So it is a great thing. और ये वैसे भी प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम मोदी जी ने स्टार्ट किया, इट इज एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज गलियों में से पकड़ पकड़ के लोगों को बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके प्रोग्राम करो। क्योंकि आई वाज एसोसिएटेड विद एफटेक एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ अराउंड 40 सेंटर्स ऑफ PMKVY आल्सो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और बच्चे आते थे। बट उनमें क्या होता था कि उनमें मोटिवेशनल करना पड़ता था उनको, क्योंकि वो सब लोग गालियां, क्योंकि उनका जो माहौल है ना वो गाली से शुरू होता है, गाली में खत्म होता है उनका जो माहौल है। सो उस माहौल से निकाल के उनको कुछ विजन दिखाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब मैं उन पे जाती थी, जब उन लोगों से बात करती थी तो टपोरी लैंग्वेज में बात करते थे। जब टपोरी लैंग्वेज में बात करते थे, तुम भी अगर थोड़ी सी टपोरीपन दिखा दोगे ना तो उनको लगेगा ये मैडम सबसे अच्छी है। तो दे यूज्ड टू लव मी। जब मैं आती थी, अरे तू क्या कर रहा है, अबे यार, मतलब इस तरह से अगर आप बात करोगे तो उनको लगेगा ये अपनी है। सो दे यूज्ड टू वेट फॉर मी टू कम कि मोनिका मैम आई है, मोनिका मैम आई। सो दैट इज द थिंग, यू नो, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, अपनापन चाहिए। बिकॉज वो जिस जगह पे रहते हैं वहां सिर्फ उनको डिग्रेड किया जाता है, डीमोटिवेट किया जाता है। जब वो इस जगह पे आते हैं उनको दिखाया जाता है कि तुम ये कर सकते हो, तो उनके लिए वो नई जिंदगी है उनके लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच, इट वाज अ अमेजिंग सेशन टुडे। और थोड़ा सा लंबा हो गया बट इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ किसी और के हाथ में नहीं है, हेल्थ आपके हाथ में है। क्योंकि ये जो अपने आप को इतने देख, उस बंदे को बोला गया था जो फर्स्ट भूल गई नाम में, उसको बोला था ये 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, बट ही सर्वाइव्ड फॉर 55 years। जो साइंटिस्ट, हाँ, तो वो 55 years तक रहा, वो कहीं नहीं, वो अपने आप को आप हील करने की क्षमता आपके अंदर खुद है। सो नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। जहां 6 महीने लगने हैं, अगर आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पावर है उससे बाहर आने की, तो आप विद इन 1 month बाहर आ सकते हैं। तो इट इज अप टू यू हाउ टू। बहुत सारे एग्जांपल्स, आप सीक्रेट वाली वेबसाइट में चले जाओ, एम्पल एग्जांपल्स यू विल सी। प्रेज द लॉर्ड। मैडम शरद पवार भी है। हाँ, शरद पवार, हाँ, शरद पवार भी है। And forget not all, yeah, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns and you with the love and compassion। कुछ नहीं करना, आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है और थैंक यू, शुक्राना करते जाओ, थैंक यू करते जाओ, अपने आप आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी। और आपने शुक्राना करना है डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी। थैंक यू सो मच, जिसने भी सब्सक्राइब किया, जिसने भी कमेंट लिखा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। एंड द असाइनमेंट फॉर टुमारो इज अगेन 10 ब्लेसिंग्स। और मैजिक एंड मिरेकल्स हेल्थ के अंदर यू हैव टू रिकलेक्ट 3 मोमेंट्स, चाइल्डहुड का, एडोलेसेंट का और एडल्टहुड के अंदर कब आप बेस्ट आपके मोमेंट थे, आप इंजॉय करते थे। जस्ट वो आप 3 को थैंक यू करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे उन मोमेंट्स को। फिर आपने अपनी बॉडी में से 5 ऐसी बॉडीज को, 5 जो फंक्शंस कर रही हैं
उन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है। और तीसरा है जो कोई कंसर्न है आपके, किसी की टांग में दर्द है, किसी की बैक में पेन है, किसी की डायबिटिक है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम, व्हाटसोएवर प्रॉब्लम और व्हाटएवर कंसर्न यू हैव, you will visualize the ideal state of that and write down that statement जो मैंने बोली थी कि this is how you have to write and keep doing it till you are perfectly fine and visualize the ideal state of that. और नेट पे आपको मिल जाएगा अगर कोई आइडियल स्टेट देखना हो, अगर किसी का ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ चीज की प्रॉब्लम है, तो शायद वी शुड नॉट से प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. लेट अस टेक वर्ड एज अ कंसर्न और अ चैलेंज, वी कैन से. Okay, thank you so much for listening to me. Thank you so much for participating over here. Thank you so much for everything. Thank you, magicians. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye bye. Good Thank you, evening. Dee. Thank you. Bye. Take Thank you. Yeah, bye. Thank you, Bye. ma'am. Thank you so much.